Yes children, welcome back to our channel again. Today we will start our study the next chapter, that is the tissue. As you know already, all living organisms, they are made up of cell. As you know, all living organisms, they are made up of a cell. Organisms which are made up of a single cell, they are known as unicellular, and the organisms which are made up of more than one cell, they are known as multicellular. In unicellular organisms, all the life functions, they are done or they are completed by a single cell only. Whereas in case of multicellular organisms, the group of cells, they perform different functions. A group of cells similar in origin, structure and a group of cells similar in origin, structure and function, that is known as tissue. What is tissue? Tissue is a group of cells which is similar in origin, structure and function, that is the tissue. Now these tissues, they may be animal tissues or they may be the plant tissues. In animals, the tissues are present, they are the animal tissue, that we will study later. Right now, we are proceeding here with the study of plant tissues. Now, plant tissues, they are of two types, meristematic tissues and the permanent. Meristematic tissues, as the word itself indicates, meristems, cells are actively divided. That what are the characteristic features of meristem cells? Meristematic tissue, they are actively, means they have the high capacity of division, they have large amount of protoplasm, nucleus is also broad, so that they actively go on divide. When the nucleus is broader, bigger, अगर न्यूक्लियस बड़ा होगा तो वो जल्दी जल्दी डिवाइड होगा, जल्दी जल्दी डिवाइड होगा तो जल्दी जल्दी नए सेल्स बनेंगे. दैट एक्टिवली डिवाइडिंग मतलब बहुत फास्ट तरीके से, बहुत तेज़ी से उनमें ग्रोथ होती है. जैसे प्लांट देखें, आज आपने देखा सीडलिंग होता है, आप स्प्राउट्स खाते हैं, जैसे स्प्राउट्स निकले एक दिन में इतने, 2 घंटे बाद उससे बड़े हो गए. तो वो जो तेज़ी से बढ़ना होता है तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल से ही होता है. They are full of cytoplasm and large nucleus. मतलब presence of living substance is abundant, that's why they divide fast. And large nucleus मतलब बड़ा nucleus है तो वो जल्दी divide होगा. So that they are able to control the activities of the cell. Besides that, they are undifferentiated, compactly arranged without intercellular space. They are large in number, they are compactly बहुत पास होते हैं. जब पास होंगे तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नेचुरली है उसमें नहीं होंगे. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर नॉट प्रेजेंट, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड दे आर हाईली कैपेबल ऑफ डिवीजन, differentiated, and they are, because they are a dividing cell, so all dividing cells, they are of the same structure and function. They are only one type of cell, whereas permanent tissues, it is opposite. They do not divide, they are permanent, they assume different shapes and sizes according to the function they have to perform, so they are modified. Permanent tissues we will go in the next video. Now in this you study about the meristematic. Meristematic cells, they are present in the growing points. Here I have taken the example of the root. In the root, see this is the root cap, a root tip. Root tip is protected by root cap. They are the cells जिससे कि जब सेल्स रूट्स में ज़मीन में अंदर गए तो जब सेल्स के अंदर मॉड्यूल्स करती है तो रूट टिप रप्चर ना हो उसके लिए रूट कैप प्रेजेंट होती है. रूट कैप इट प्रोटेक्ट्स रूट टिप. रूट कैप जो है रूट टिप को प्रोटेक्ट करती है जिससे कि रूट टिप बस्ट ना हो. और यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. इन दिस प्लेस यू हैव meristematic cell, that is the meristems. Meristems are present in this region. So these meristematic cells, they actively divide and it goes in. And the root hairs are present over there in the mature region. This is the maturation zone. This one, it is the maturation zone. This is elongation zone. मतलब लंबाई में बढ़ते हैं. और this is actively dividing cell, that is the
मेरिस्टेमेटिक जोन. हियर द सेल्स गोज ऑन डिवाइड. यहाँ पर एलोंगेट होते हैं, मतलब सेल्स अपनी लंबाई चौड़ाई में बढ़ता है. सेल डिवाइड नहीं होता है, जिससे इसकी लंबाई एलोंगेट होता है, बड़ा होता है. और ये मेरिस्टेम, ये जो है इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, अलोंग सिर्फ फंक्शंस होते हैं. ये परमानेंट जोन, परमानेंट टिश्यूज चेंज हो जाते हैं. और यहाँ पर ये मेरिस्टेम्स होते हैं. मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. ना ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दे आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स. मेन ये फंक्शन, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ एंड ब्रेथ. मतलब पेड़ लंबाई में बड़े होते हैं, चौड़े. जैसे आप स्टेम तना देखते हैं तो वो लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी बड़ा होता है. तो जो गर्थ इंक्रीज होती है, डायमीटर स्टेम की इंक्रीज होती है, वो भी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से. सो ऑन दैट बेसिस दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल. एपिकल, द वर्ड itself indicates present towards the apex of the root, stem and the leaves. Apical meristem, they are present in growing tips of root and shoot tip. Root tip जैसे ये, shoot tip ऊपर शूट, जहाँ पेड़ की आखिर पौधी फुनगी होती है, जिससे कि पेड़ लंबाई में बढ़ता है. स्टेम जहाँ जड़ होती है वो तो फिक्स होती है, समय के साथ साथ वो मोटाई में बढ़ती है. और ऊपर की जो नई ब्रांचेस निकलती हैं उससे पेड़ लंबा होता है. तो जो शूट टिप और रूट टिप यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं. हियर एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम, यानी कि रूट और स्टेम इसकी लंबाई बढ़ती है, ये एलोंगेट होते हैं. लेटरल मेरिस्टम बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ ए ट्री, ये स्टेम को थिकनेस में बढ़ाते हैं, गर्थ बढ़ती. पेड़ जितना पुराना होगा उतना ही धीरे धीरे मोटा होता जाएगा. सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एनुअल रिंग्स के जरिए बढ़ता है. जैसे इसको अगर आप काटेंगे तो ये आपने लॉक्स वुड के देखे होंगे. पेड़ जितने साल पुराना होगा हर साल एक रिंग बनती है, एंड दे आर नोन एज एनुअल रिंग्स. इससे गर्थ यानी कि पेड़ की मोटाई बढ़ती है. ये दिस इज द लॉग ऑफ द वुड, ये स्टेम है. लॉग ऑफ द वुड इट्स इंक्रीजेज. तो जितने राउंड रिंग्स होते हैं इससे काउंट करके आप पेड़ की एज निकाल सकते हैं कि हाउ ओल्ड द ट्री इज. लॉग ऑफ वुड, बड़े बड़े लोहे उसके लकड़ी के आपने टुकड़े देखे होंगे, बड़े पेड़ों के जो लॉग ऑफ वुड होते हैं उनमें आपको ये मिलेगा. तो जो ये लेंथ बढ़ती है एपिकल से. लेटरल मेरिस्टम से क्या बढ़ता है? डायमीटर ऑफ रूट और स्टेम. तना भी मोटा होता है और जो रूट होती है वो भी मोटी है. तो जो मोटाई बढ़ती है वो लेटरल मेरिस्टम से बढ़ती है. और इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये नोड और इंटरनोड के बीच में, जैसे अगर यहीं पर आपका ये स्टेम जाएगा तो यहाँ पे जो ब्रांचेस निकलेंगी इस तरह, तो ये ब्रांचेस जो पेड़ घना होके फैलता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम से होते हैं. इंक्रीज द लेंथ ऑफ पार्ट्स. जैसे एक ब्रांच शाखा निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, चौथी निकली, फिर उस शाखाएं से और शाखाएं निकली, यानी कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्रीज. पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या होते हैं? स्टेम एंड लीव्स एंड रूट. रूट्स में भी जैसे यहाँ से हैं और रूट के ब्रांचेस निकले, यहाँ पर निकले, फिर इससे निकले. ये जो स्टेम ब्रांचेस निकलती हैं वो निकलती हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. दैट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ पार्ट्स और ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी. द लीव्स इंटरनोड्स, जैसे ग्रास है, ग्रास का स्टेम बढ़ता है तो उस स्टेम से जहाँ से लीव निकलती है, नोडल रीजन, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लीफ अराइजेज इज कॉल्ड नोड, and the distance between the two node is known as internode, right? Now in between node and internode, that is in node to nodal point, जो दो पॉइंट्स हैं, ये स्टेम है. मान लीजिए यहाँ से लीफ निकली, यहाँ से लीफ निकली, तो ये पॉइंट क्या है? नोड. और इसके बीच का क्या है? इंटरनोड. तो ये इंटरनोड के ऊपर या नीचे किसी भी तरफ हो सकता है. यहाँ पर जो मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो इंटरकैलरी मेरिस्टम. आई होप इट इज क्लियर. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, they are actively dividing cells. They have lot of cytoplasm. Nuclei is very enlarged, full of actively dividing cells, and they increase the height and thickness of the plant. According these meristematic, they are divided into 3 parts: apical meristem, lateral meristem, intercalary. Location, they are the tips of the roots, stem and branches. Function, increase the height, thickness of the plant and the lateral branch. Height increases through apical meristem, thickness
increases to lateral meristrum and the width मतलब फैलाव जो पेड़ का होता है वो इंटरकैलर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस और निकलती है और पेड़ घना होता है. जनरली ट्रीज में होते हैं ये, वहाँ पर प्रेजेंट होगा. दैट इज द कॉल्ड intercalary meristem. I hope it is clear to you. Now in the next video we proceed with the permanent tissues. Permanent tissues, their capacity of division is lost. Only the cells assume particular shape to perform particular function. Now this finishes your meristematic tissues. Thank you. Again we will meet in the next video. Thank you children.